So hello guys, how are you all? As promised, so we are going to cover the next question in the series, which is delete an element from linked list. So in this topic we are going to cover how do we delete an element from a given linked list. Okay, so as usual, let's start from an example. If you see this linked list, so at this point I think we are quite confident in knowing what a linked list is, and then what does this whole diagram means. So a linked list is, if you are if you are new to the video, you can see that a linked list is a collection of nodes which have data and then a next pointer to the next value in the linked list. Okay, so you can refer my previous videos. I provided the link in the description and you can go there and read about it. So coming back to the topic, so if you see a linked list, what do you see actually when you look over this diagram? You can see this linked list has three parts, as you can very easily determine. A linked list has three parts. What are the three parts? Usually you know that it has a head part, and then we don't actually provide them a name, but I have given them a name as intermediate parts and the tail part. Got it? So we have a head part, an intermediate part, and then tail part. Quite cool. So these are the three parts of linked list. Got it? So this is it. After then, when you look closely over the question, you'll find that we have to delete an element from the linked list. But the next question is, where can we find an element to be deleted? Like the element that is required to be deleted, where do we find it? Either it can occur on the head part of this linked list, or it can occur on the intermediate or the tail part, that is on any other part of the node. Okay, on the any other part of the linked list. Okay, sorry, it was written correct, at any other node. Okay, so either it can be on the head or at any other node. Cool. So let's see how this how does this makes a difference. Actually, if you see the question, you'll find 1, 5, 2 and 12. So we have this linked list 1, 5, 2 and 12. So we can delete an element from here as well, and then we can delete element from anywhere apart from this head node. So we have to see how this deletion at these 2 points are different. At first go, you might not feel it's different in any way, but there is a certain reason why we are discussing the node to be deleted can exist at any of these 2 points. Check, either it can be on the head or any other point. Got it? So let's see an example. Suppose we have to delete 2 in this given linked list. Okay, you have to delete 2 in the given linked list. So can you tell me what will be the final outcome when we have deleted this 2? So what happens if you see this linked list, you'll find कि ये जो 2 है, it will be deleted from this linked list. So we'll have a direct connection from 5 to 12, and there won't be any other element sitting in between them. That this will be the final structure of this linked list. Okay, so let's see how we do it. If you look closely over this part only, over 5, 2 and 12, so we have something like head is pointing to 1, 1 is pointing to 5, 5 is pointing to 2, 2 is pointing to 12, and that you don't point anybody. Okay, this is what the general structure of this linked list is. Okay, now what happens when we are going to delete 2? Okay, let's say when we are deleting 2, what is actually happening? If you see in this diagram, we are connecting this link from the previous element, the element which is existing to the one step prior to this 2. We are taking its next pointer and then pointing to the very next element in the list just after 2. यानी कि जो point 2 है ना, अगर 2 को डिलीट करना था, so what we are capturing the previous element कि 2 से पहले कौन सा एलिमेंट आया है, and then what we are trying to do, जो 2 से पहले का एलिमेंट था ना, उसके नेक्स्ट पॉइंटर को अपडेट कर दे रहे हैं. व्हाट आर वी डूइंग? वी आर पिकिंग अप द नेक्स्ट पॉइंटर फ्रॉम द प्रीवियस एलिमेंट एंड पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट विच 2 इज पॉइंटिंग टू. ठीक है, अब देखो, जब ये कर रहे हो, व्हाट आई डिड, जब मेरे को 2 डिलीट करना होगा तो आई एम गोइंग टू द प्रीवियस एलिमेंट. ठीक है, एट दिस पॉइंट यू मस्ट बी थिंकिंग जब 2 पे खड़े हो तो प्रीवियस एलिमेंट पे कैसे जाओगे. विल सी हाउ विल गो देयर. ठीक है, लेकिन अगर अपने पास ये प्रीवियस एलिमेंट हो, देन व्हाट कैन वी डू? तो अपन क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस एलिमेंट का नेक्स्ट पॉइंटर है, दैट इज दिस पॉइंटर, जो ये पॉइंटर है ना, इसको यहाँ से हटा के विल सेफली रिमूव दैट फ्रॉम हियर, और यहाँ से हटा के
इसको पॉइंट करा देंगे, ठीक है। तो अभी अपने पास जो लिंक लिस्ट है उसमें हेड होगा, 1 होगा, 5 होगा, एंड देन इट्स 5 का एंड जो है, 5 का नेक्स्ट जो है 12 को पॉइंट कर रहा होगा, बट 2 भी देखो इसको पॉइंट कर रहा है। सो वी डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन। इस लिस्ट से 2 को अलग कर देना है। सो व्हाट डू वी डू, इस पॉइंट पे खड़े होके इसके नेक्स्ट को अगर डिलीट कर दें, इसके लिंक को अगर हटा दें यहाँ से, सो आर वी गेटिंग अ स्ट्रक्चर दैट वी आर सर्चिंग फॉर। ये स्ट्रक्चर मिल जा रहा है क्या अपने को, ऐसा कुछ। इफ़ यू लुक क्लोजली यू विल फाइंड कि हाँ अपने पास कुछ ऐसा मिल जा रहा है कि अपने पास एक हेड होगा, एंड देन 1 होगा, 5 होगा, एंड देन 12 होगा, एंड देन देयर कम्स दिस नल पॉइंटर। सो अपने को ये पता चल गया कि इफ़ यू आर हैविंग अ प्रीवियस एलिमेंट तो अपन उसको कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर अपन यहाँ खड़े हैं और इसके प्रीवियस को, मतलब अगर अपन यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, 2 पे खड़े हैं, और अगर अपने को 2 को डिलीट करना है तो अपने पास प्रीवियस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, उससे पहले वाला एलिमेंट अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये तो पता चल गया करना क्या है, बट और कैसे करना है ये भी पता चल गया, बट द ओनली हर्डल रिमेन्स हियर इज कि वो प्रीवियस एलिमेंट तक कैसे पहुंचेंगे। बिकॉज इन द लिंक लिस्ट आई हैव टोल्ड यू लाइक मल्टीपल टाइम्स कि पीछे नहीं पहुंच सकते। सो देयर मस्ट बी अ टेक्निक टू स्टोर द प्रीवियस एलिमेंट। तो क्या करना होगा ना, सो देयर इज एन आइडिया व्हाट कैन वी डू कि अपन जब भी लिंक लिस्ट में आगे बढ़ते हैं ना, जब भी लिंक लिस्ट में आगे बढ़ेंगे, व्हाट डू वी यूजली डू इन द लिंक लिस्ट। अपन मान लो अपने पास से लिंक लिस्ट, एज्यूम वी हैव अ लिंक लिस्ट ओवर हियर, ठीक है, हेड से पॉइंटेड है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है, ऐसा सिर्फ 5 है, ठीक। और सपोज वी हैव दिस लिंक लिस्ट, ठीक है, और समवेयर यहाँ से हम लोग इसको टेम्प रखते थे एंड देन स्टार्ट करते थे ट्रैवर्सल अप टू द एंड। क्या करते थे, टेम्प को आगे अपडेट करते जाते थे। सो ऐसे करते थे ना कि वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, तब तक टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, यही करते थे, ठीक है। टेम्प पहले यहाँ हुआ करता था, यहाँ से हट के यहाँ पॉइंट करेगा टेम्प, ठीक है, उसके बाद से यहाँ से हट के यहाँ पॉइंट करेगा, फिर यहाँ से हट के यहाँ पॉइंट करेगा। दिस इज हाउ इट गोज। तो क्या करते हैं, लेट्स डिक्लेयर अनदर वेरिएबल। एक नोट प्रीवियस वेरिएबल अगर बना लूँ तो क्या तुम इसको अपडेट करने से पहले प्रीवियस में अगर टेम्प को स्टोर कर लो और तब जाके टेम्प को नेक्स्ट से पॉइंट करो, तो क्या अपना काम चल जाएगा क्या। लेट्स सी, दिस इज द कोड आई हैव रिटन, ठीक है। जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता, आई थिंक व्हाट एग्जिस्ट प्रायर टू दिस कोड, यू टेम्प इज इक्वल टू हेड ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखते हैं इससे क्या हो रहा है, ठीक। तो व्हाट आई हैव टोल्ड कि इनिशियली एक ये ले लो, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। इनिशियली अपने पास एक लिंक लिस्ट थी जिसका हेड 1 को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। एंड देन व्हाट वी डिक्लेयर्ड, एंड लेट्स डिक्लेयर अ प्रीवियस वेरिएबल ऑल्सो। यहाँ पे एक प्रीवियस डिक्लेयर कर दो जो इनिशियली नल को पॉइंट कर रही है, ठीक है। तो जब टेम्प यहाँ पे था अपना, सपोज टी इज इक्वल टू टेम्प एंड पी इज इक्वल टू प्रीवियस, ठीक है। तो जब टेम्प अपना यहाँ पे था तो अपना प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा था, किसी को नहीं। जब टेम्प अपना हेड पे था तो प्रीवियस किसी को पॉइंट नहीं कर रहा था। व्हाट हैपेंस, जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता तब तक प्रीवियस अपना, अगर टेम्प नल नहीं है तो प्रीवियस अपना टेम्प को पॉइंट करेगा और टेम्प एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। सो इट सेज, पहली बार यहाँ पे आओ, चलो यहाँ चेक करते हैं क्या टेम्प नल है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो क्या आता है, प्रीवियस को टेम्प बना दो, यानी कि जो प्रीवियस है ना ये उसको पॉइंट करेगी जिसको टेम्प पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। व्हाट डज दिस नेक्स्ट लाइन सेज, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो ये जो टेम्प है ना इसको यहाँ से हटा के यहाँ पॉइंट कर दो अगेन। अब यहाँ पे आ गए, वापस से लूप में यहाँ पे आ गए, कह रहा है क्या टेम्प नल है क्या, यहाँ चेक करो टेम्प नल है क्या, नहीं टेम्प नल नहीं है। देन अगेन क्या कह रहा है, प्रीवियस इक्वल टू टेम्प। अभी जो प्रीवियस यहाँ पॉइंट कर रहा था ना, प्रीवियस को यहाँ पॉइंट कराओ, ठीक है। एंड देन टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, और ये जो टेम्प है ना इसको यहाँ पॉइंट कराओ, ठीक। अगेन चेक करो क्या टेम्प नल के बराबर है क्या, नहीं टेम्प नल नहीं है, यानी कि जो प्रीवियस है इसको टेम्प को पॉइंट कराओ। तो ये जो प्रीवियस होगा
यहाँ पॉइंट करेगा। एंड व्हाट विल दिस टेम्प पॉइंट, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, एंड टेम्प को यहाँ से अपडेट कर दो। एट एनी पॉइंट अगर तुम यहाँ पे खड़े हो जाते हो ना, तो तुम देखोगे अगर हम टेम्प पे खड़े हैं तो अपना जो प्रीवियस है ना वो एक स्टेप पीछे है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव कैप्चर्ड कि हाँ वी हैव गॉट अ मेथड टू कैप्चर दिस प्रीवियस एलिमेंट। ठीक, ये अपने को पता चल गया। ठीक है, कि अगर अपन टेम्प पे हैं तो प्रीवियस एलिमेंट को पकड़ने का तरीका पता चल गया। ठीक है, क्वाइट कूल। तो अब और क्या कर दें इस कोड में कि ये कोड वैसा काम करने लगे जैसा हम लोग यहाँ चाहते थे। ठीक है, बस एक कंपैरिजन ही तो और लगाना है। टेम्प नल नहीं है तो यहाँ एक कंपैरिजन लगा दो कि क्या टेम्प का जो डेटा है वो x के बराबर है। अगर हम लोग उस पॉइंट पे पहुँच गए हैं तो अपने कोड में कुछ ऐसा करना होगा कि ये जो टेम्प, ये प्रीवियस का नेक्स्ट है, ये टेम्प के नेक्स्ट को पॉइंट करे। समझे ये वाला प्रोसेस। ये जो प्रीवियस का नेक्स्ट है जिसको हमने यहाँ किया है ना, ये जो प्रीवियस का नेक्स्ट है ये टेम्प के नेक्स्ट को पॉइंट करे, और ये जो टेम्प का नेक्स्ट है ये यहाँ से लिंक हट जाए और टेम्प अपने आप डिलीट हो जाएगा। मीन्स ये बीच की लिंक ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आओ लेट्स राइट दैट क्लियरली। ठीक है, तो लेट्स राइट ऑन दिस क्लियर पेज। ठीक है, तो ये रहे अपने टेम्प और प्रीवियस। आपको एक चीज़ पता चल गई कि अगर प्रीवियस पता हो और टेम्प पता हो तो अपन कैसे डिलीट कर सकते हैं। अज्यूमिंग दैट वी आर नॉट गेटिंग दैट एलिमेंट एट द हेड पॉइंटर। ठीक है, वो बिल्कुल हेड पे नहीं है तो क्या कर रहे हैं। ठीक, व्हाट वी आर गोइंग, वी आर डिक्लेयरिंग टेम्प इज इक्वल टू हेड। इनिशियली टेम्प इज इक्वल टू हेड डिक्लेयर कर लिया, प्रीवियस इक्वल टू नल डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब तक अपना जो टेम्प है नॉट इक्वल टू नल होता है। ठीक, टेम्प जब तक नल नहीं हो जाता तब तक क्या करो, इसके अंदर आओ, चेक कर लो एक बार। चेक कर लो क्या, इफ़ टेम्प डॉट डेटा इक्वल टू एक्स है जिसको डिलीट करना है तो क्या करना होगा। अगर वो इसके बराबर हो गया जिसको डिलीट करना है तो क्या कर रहे थे अपन पीछे, जो प्रीवियस का नेक्स्ट पॉइंटर था, सॉरी टेम्प शुड नॉट बी हियर, प्रीवियस यहाँ होगा। ठीक है, तो जो प्रीवियस का नेक्स्ट पॉइंटर था वो टेम्प के नेक्स्ट पॉइंटर को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो जो प्रीवियस का नेक्स्ट था वो टेम्प के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। कूल। और जो हमारा टेम्प का नेक्स्ट था वो किसी, जो प्रीवियस का नेक्स्ट था ये तो ऑलरेडी टेम्प के नेक्स्ट को पॉइंट करने लगा, और जो ये बीच की लिंक बची हुई है उसको भी डिलीट कर देना है। तो जो टेम्प का नेक्स्ट है वो किसी को पॉइंट नहीं करेगा। और इस प्रकार से हमने टेम्प को लिबरेट कर दिया, खाली कर दिया, अपना काम हो गया। तो बाहर निकल गया, तो रिटर्न, कुछ मत करो भाई। और अगर ये डेटा एक्स के बराबर नहीं है तो यू नीड टू अपडेट टेम्प एंड प्रीवियस। तो टेम्प को एक आगे बढ़ाना है और प्रीवियस को टेम्प की जगह लेनी है। तो प्रीवियस को टेम्प की जगह लेनी है और टेम्प को एक आगे बढ़ जाना है। ठीक, दिस इज हाउ इट गोज। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये रहा अपना वो पार्ट जिससे तुम ये समझ सकते हो कि अगर अपना एलिमेंट कहीं बीच में एग्जिस्ट करता है नॉट ऑन द हेड नोड तो अपन ऐसे डिलीट कर लेंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, इसका स्क्रीनशॉट लेना। एक चीज़ बताओ, जब तुम्हारा एलिमेंट जिसको तुम ढूंढ रहे हो डिलीट करने के लिए, इफ़ दैट एलिमेंट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग ऑन दिस हेड पॉइंटर, तो क्या तुम्हें पॉइंटर छीनने की ज़रूरत पड़ी क्या? मतलब तुमने कहीं भी इस पॉइंटर में छेड़खानी की क्या हेड पॉइंटर को? क्या तुमने हेड को कहीं इसमें चेंज किया है? ऑल थ्रू आउट दिस गेम, यहाँ पे अगर देखो, क्या तुमने इस पूरे गेम में 2 को डिलीट करने के प्रोसीजर में हेड को चेंज किया क्या? नहीं, यू डिड नॉट केयर अबाउट हेड। क्यों चेंज करना है? अच्छा, व्हाट अबाउट इफ़ यू वांट टू डिलीट 1 इन दिस लिंक लिस्ट? ठीक है, अगर ये लिंक लिस्ट दिया होता और सपोज वो एलिमेंट कहीं बीच में एग्जिस्ट ना करके पहले पोजीशन पे एग्जिस्ट करता, ठीक है, 1 पे एग्जिस्ट करता, तो क्या होता? इट माइट लुक लाइक वेरी सिंपल। ठीक है, हेड को डिलीट करना है, हेड इज इक्वल टू नल कर दो। अरे कर सकते हैं क्या? ठीक है, ऐसा कर दो। तो अगर तुम ऐसा कर देते हो व्हाट विल हैपन, हेड जो इसको पॉइंट कर रहा है, ये जो हेड था, अब किसी को पॉइंट नहीं करेगा। तो क्या तुम पूरी लिंक लिस्ट नहीं खो दे रहे हो? इन स्पाइट ऑफ जस्ट लूजिंग 1 एलिमेंट फ्रॉम दिस लिस्ट,
आर वी नॉट लूजिंग द कंप्लीट लिस्ट, ठीक है। यानी कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो अपन लिख रहे हैं हेड इज इक्वल टू नल, ये सरासर गलत है, अपने को ये तो नहीं करना है। व्हाट शुड वी डू देन, क्या ऐसा कर दें कि ये ठीक हो जाए। अपना जो अगला लिंक लिस्ट जो आंसर आना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वी हैव टू गेट होल्ड ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, यानी 1 को लिबरेट कर देना है, लेकिन ये जो हेड है यहाँ आ जाए, ठीक है, 1 लिबरेट हो जाए, बट दिस हेड शुड पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो इट माइट कम टू योर माइंड कि ये तो बहुत आसान चीज़ है, अगर पहले एलिमेंट को डिलीट करना है तो हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कर दो, ठीक है। व्हाट कैन हैपन इफ़ यू जस्ट राइट हेड डॉट नेक्स्ट, अगर तुम ऐसा करते हो ना, तो सपोज दिस वाज द लिस्ट जो अपने पास एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, इसको हेड पॉइंट कर रहा है, हेड यहाँ पे है। अगर तुम हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कर देते हो तो ये जो हेड का पॉइंटर है ना, वो यहाँ को ना पॉइंट करके यहाँ पॉइंट करेगा, बट स्टिल डज इट गिव्स यू द फील ऑफ, इतना ही तो किया तुमने। तो क्या ये लिंक लिस्ट है क्या, इट्स एक्चुअली अ लिंक लिस्ट, बट ये जो बेकार सा लिंक है ना, वी डोंट वांट इट, वी वांट टू लिबरेट वन कंप्लीटली, ठीक है। तो आई हैव गॉट सम आइडिया कि अगर मेरे को इसको आगे बढ़ाना है ना, तो लेट्स स्टोर हेड डॉट नेक्स्ट को, चलो कुछ स्टोर कर लेते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। सपोज लेट्स गेट होल्ड ऑफ दिस हेड डॉट नेक्स्ट इनटू अ टेम्प, टेम्प से इसको पॉइंट करा दिया। इसके बाद वी कैन ईजिली से, इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले इसको टेम्प में स्टोर करा दिया, उसके बाद हेड डॉट नेक्स्ट को नल कर देते हैं, ठीक है, इसके बीच का कनेक्शन उड़ा दिया, ठीक। व्हाट डू वी नीड टू डू नाउ, अब हेड को अपडेट कर दो, तो हेड जो ये, अब इसका कोई मतलब तो रह नहीं गया, तो इस हेड को भी इससे पॉइंट करा दो, तो ये क्या कहेगा, सो हेड इज इक्वल टू टेम्प, हो गया क्या काम। 3 स्टेप का प्रोसेस है बस, एक टेम्प बनाओ जो पॉइंट करता हो, टेम्प इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट पे पॉइंट करता हो इनिशियली, ठीक है, हेड डॉट नेक्स्ट को नल बना दो, उसके बीच का लिंक डिलीट कर दो, ठीक, एंड हेड को अपडेट कर दो। सो डू यू सी ए डिफरेंस इन दिस 2 थिंग्स, ये जो पूरा प्रोसीजर है, क्या इसमें कोई डिफरेंस नोट कर पा रहे हो क्या तुम। हमने जो 2 चीज़ें देखी, इसमें क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये है कि अगर तुम हेड को डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हें हेड को मॉडिफाई करना होगा, बट इफ़ यू आर नॉट डिलीटिंग द हेड, we do not need to touch this head, beware, we don't need to touch this head if we are not deleting any element present over there in the link, ठीक है। लेकिन अगर वो एलिमेंट हेड पे एग्जिस्ट करता है, then definitely 100% we have to modify this head, ठीक है। तो beware, the head has to be handled with care, so because जो अपना लिंक लिस्ट होता है ना, I have always told you in the videos, हेड बोलो या लिंक लिस्ट बोलो, बोथ आर सिनोनिम्स, ठीक है। हेड मीन्स लिंक लिस्ट मीन्स हेड, यानी अगर तुम हेड को मॉडिफाई कर देते हो, कुछ गलती कर देते हो, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट यू उस पूरी लिस्ट को ख़राब कर दो, ठीक है। तो वी डोंट वांट टू डू दैट, ठीक। चलो, तो लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व दिस। अपने को ये पता चल गया कि अगर अपना एलिमेंट हेड पे एग्जिस्ट करता है तो क्या करना है, ठीक है। एक एलिमेंट डिक्लेयर किया, आई हैव टोल्ड यू टेम्प, बट क्या फ़र्क पड़ता है, नाम बदल दो ना, टेम्प की जगह करंट रख दो, ठीक है, करंट इज इक्वल टू हेड। उसके बाद से क्या किया था, उसके बाद से अगर हेड पे एग्जिस्ट करता है तो पहले एक एलिमेंट लिया, टेम्प इज इक्वल टू हेड, ठीक है, टेम्प इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, एक एलिमेंट लिया था, ठीक। अगर अपना एलिमेंट हेड पे एग्जिस्ट कर रहा है तो पहले टेम्प ले लिया, उसके बाद से हेड डॉट नेक्स्ट को नल कर दिया, दोनों के बीच का कनेक्शन काट दिया, उसके बाद से हेड को आगे अपडेट कर दिया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट विल डू, विल टेक एन एलिमेंट, करंट इज इक्वल टू हेड, ठीक है, इनिशियली करंट इज इक्वल टू हेड ले लिया, और यहाँ पे करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट बोलो या हेड डॉट नेक्स्ट बोलो, एक ही बात है, सिमिलर थिंग, ओके। इफ यू डोंट वांट टू बी कंफ्यूज, लेट्स राइट इट दिस वे, चलो, करंट इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, क्लियर, ये ले लिया, ठीक है। हेड का लिंक बदल दिया, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल कर दिया, ठीक, और उसके बाद से हेड को अपडेट कर दिया। इतना काम जैसे ख़त्म हुआ, रिटर्न कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
व्हाट विल हैपन इफ दिस एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट ओवर दैट हेड, ठीक है। इस केस में क्या करना होगा, आई हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग ओनली, अगर ये एलिमेंट हेड पे प्रेजेंट नहीं होगा, सो वी हैव टू ट्रैवर्स यूजिंग प्रीवियस एंड करंट पॉइंटर, ठीक है। अपने को यहाँ से वहाँ ट्रैवर्स करना होगा यूजिंग द प्रीवियस पॉइंटर एंड द करंट पॉइंटर। तो एक टेम्प ले लेंगे और सपोज वी आर यूजिंग करंट ओवर हियर, आई एम वेरी सॉरी फॉर यूजिंग दिस टेम्प। देखो एक्चुअली नेम डजेंट मैटर, इसको तुम XYZ लिख लो, यू नो। ये करंट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये हमारे लिए सहूलियत पैदा करती है कि लाइकवाइज इफ आई यूज करंट इट गिव मी दिस, यू नो, इट गिव्स मी द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द करंट वेरिएबल, समझ रहे हो। मैं प्रेजेंट में हूँ एंड देन इफ आई कॉल इट प्रेजेंट, तो ये ज़्यादा सूटेबल लगेगा ना, इन स्पाइट ऑफ कॉलिंग इट XYZ। सो लेट्स कॉल इट करंट, इट शुड नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक। और जो प्रीवियस वेरिएबल है, डेफिनेटली बाय द नेम इट सजेस्ट कि हाँ वो प्रीवियस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, सो वी विल टेक द नेम अकॉर्डिंगली, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो लेट्स टेक अ करंट पॉइंटर विच पॉइंट्स टू द हेड एंड द प्रीवियस पॉइंटर विच पॉइंट्स टू द नल इन द बिगिनिंग। और उसके बाद क्या कर रहे थे, हर पोजीशन पे जाके चेक कर रहे थे, इफ दिस एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है देन वी वर अपडेटिंग, जो प्रीवियस है पहले इसको पॉइंट कर दे रहा था एंड इस एलिमेंट को आगे बढ़ा दे रहे थे, वीडियो में पीछे देखा ये चीज़। सो दिस इज हाउ वी आर अपडेटिंग दिस होल प्रीवियस एंड करंट पॉइंटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सो इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट एट हेड वी आर डिक्लेयरिंग अ करंट वेरिएबल विच पॉइंट्स टू द हेड इन द बिगिनिंग, ठीक है। और जो प्रीवियस है उसमें पहले, अब तुम हेड पे खड़े हो, इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट दिस इनिशियल पॉइंटर, तो अपने प्रीवियस में तो कुछ होगा नहीं ना, तो ऑब्वियसली वो नल होगा, ठीक। सो इनिशियली प्रीवियस इज पॉइंटिंग टू नल, ठीक है। उसके बाद से जब तक हमारे जो करंट वेरिएबल है ना, जो अपने लिंक लिस्ट में ये जितने वेरिएबल्स हैं उसका जो करंट वेरिएबल है, ये जो करंट वेरिएबल है, जब तक वो नल नहीं हो जाता तब तक अपने को एक प्रोसेस फॉलो करना है। व्हाट डू वी हैव टू फॉलो, यू हैव टू चेक इफ द करंट डेटा इज इक्वल टू x, ठीक है। जिस डेटा को ये लुक, अगर अपना ये जो प्रोसेस है, दिस इज एक्सप्लिसिटली इफ आर एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट ओवर द हेड, ठीक है। तो ये भूल जाओ कि पहले एलिमेंट पे एग्जिस्ट कर सकता है, बिकॉज वी हैड ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ द एलिमेंट टू बी प्रेजेंट एट हेड, ठीक। उसका अपने अलग से एक प्रोसेस बना रखा है, ठीक। सो वी आर सपोजिंग कि हाँ अपना जो ये एलिमेंट है वो हेड पे तो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। सो इफ द एलिमेंट इज एग्जिस्टिंग एट एनी अदर पॉइंट, तो उस समय तक अपने पास कुछ करंट भी होगा, कुछ प्रीवियस भी होगा, ठीक है। एंड लेट्स सी हाउ वी आर गेटिंग दैट करंट एंड प्रीवियस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज जस्ट अ कोड फॉर दैट अपर पार्ट, यही तो लिखा था पीछे वाले कोड में। सो वी आर चेकिंग इफ द करंट डॉट डेटा इज नॉट इक्वल टू x, इफ दिस इज नॉट द डेटा दैट वी आर सर्चिंग फॉर, तो क्या करना है, सॉरी, इफ दिस इज द नोड दैट वी आर सर्चिंग फॉर, ठीक है। तो अपना जो प्रीवियस एलिमेंट था ना, ऐसा मान लो ये मैं यहाँ पे हूँ, ठीक, यहाँ पे हूँ और प्रीवियस कहीं यहाँ पे है। सो इफ़ यू हैव फाउंड दैट एलिमेंट ओवर हियर जिसको तुम सर्च कर रहे हो, यू हैव टू अपडेट दिस लिंक और इस लिंक को डिसेबल कर देना है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ईजी। उसके बाद से करंट डॉट नेक्स्ट को नल बना दो, ईजी, इस लिंक को डिसेबल कर दिया एंड देन रिटर्न आउट ऑफ दैट लूप, ठीक है। इस फंक्शन से बाहर निकल जाओ वेरेवर दैट फंक्शन इज, ठीक। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, सपोज दैट ये वो एलिमेंट नहीं है, देन व्हाट डू वी नीड टू डू, करंट को आगे बढ़ाओ, प्रीवियस को अपडेट कर दो, मतलब अब इसकी जगह प्रीवियस ले लेगा एंड करंट विल गो फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। तो प्रीवियस इक्वल टू करंट एंड करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, वेरी इजी, बहुत ही ईजी है। आई डोंट थिंक कि आई नीड टू राइट द कोड एनी मोर, बट इफ यू वांट इट आई विल राइट इट, लेट मी राइट इट, इट वॉन्ट टेक मच टाइम, ठीक है। तो अपने आप जो कोड है, ये वीडियो बड़ी बन रही है थोड़ी, बट चलो, तो मेक दैट ईजी, आई हैव ऑलरेडी रिटन दैट कोड। तो देखो, दिस इज व्हाट हैपन्स, अपने को क्या दिया होगा, अपने को एक फंक्शन दिया होगा वेयर वी हैव टू डिलीट दिस एलिमेंट टेक्स्ट फ्रॉम द लिंक लिस्ट, ठीक है। और क्या दिया होगा फंक्शन में, एक लिंक लिस्ट दिया होगा, ठीक है। तो हेड इज़ द लिंक लिस्ट, और अपने को रिटर्न तो कुछ करना नहीं है, वी हैव टू डिलीट एंड दिस गेट अवे, सो वॉइड डेटा टाइप, ठीक है, वॉइड रिटर्न टाइप, ठीक। अब देखो, इनिशियली व्हाट आर वी टेकिंग, वी आर डिक्लेयरिंग अ करंट पॉइंटर विच पॉइंटिंग टू द हेड, और एक प्रीवियस पॉइंटर होगा जो इनिशियली नल होगा, ठीक है। ये कहानी क्लियर है। नाउ लेट्स सी, क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो जो एलिमेंट हम लोग सर्च कर रहे हैं वो हेड पे एग्जिस्ट करता है। इफ दैट इज द केस, व्हाट आर वी डूइंग,
वी आर डिक्लेयरिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल विच इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट पॉइंटेड बाय द हेड, ठीक। और उसके बाद हेड को अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो हेड का जो नेक्स्ट है उसको नल कर देते हैं, हेड को टी पे सेट कर देते हैं, एंड देन वी आर रिटर्निंग आउट ऑफ दैट फंक्शन कि जो अपना डिलीशन का काम हो गया तो यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, सो वी जस्ट मूव आउट ऑफ द फंक्शन। वेरी क्लियर, ठीक है। अगर वो एलिमेंट हेड पे एग्जिस्ट करता है तो इफ़ दैट इज़ नॉट द केस वी आर कमिंग टू दिस पार्ट, ठीक है। तो वी ऑलरेडी हैव अ करंट एंड द प्रीवियस पॉइंटर्स, ठीक। इनिशियली करंट इज इक्वल टू हेड एंड प्रीवियस इज इक्वल टू नल, ठीक। उसके बाद स्टार्ट करते हैं वाइल द एलिमेंट पॉइंटेड बाय करंट इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि करंट जब तक जो है किसी एक नोड को पॉइंट कर रहा है तब तक क्या चेक करना है, तब तक ये चेक करना है कि क्या हम लोग करंटली जो डेटा पॉइंटेड है करंट से वो x के बराबर है। इफ़ दिस इज द एलिमेंट दैट वी आर सर्चिंग फॉर, अगर ऐसा है तो इसके प्रीवियस के नेक्स्ट को करंट के नेक्स्ट से पॉइंट कर दो, ठीक। अगर ऐसा है तो इसके प्रीवियस के नेक्स्ट से करंट के नेक्स्ट को पॉइंट कर दो एंड देन डिलीट दिस लिंक। तो करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू लिंक नल, यानी ये जो बीच का लिंक है इसको डिलीट कर दो, ठीक है। दिस बिकम्स द केस, ठीक। और जब ऐसा हो जाता है तुम डिलीट कर चुके देन गेट आउट ऑफ दैट फंक्शन, ईजी, ये हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हो तुम, इफ़ दैट इज़ नॉट द केस, इफ़ हम लोग यहाँ पे जिसको पॉइंट कर रहे हैं वो डेटा नहीं है, देन व्हाट डू वी डू, सिंपली करंट और प्रीवियस को आगे बढ़ा दो। सो सेट प्रीवियस इक्वल टू करंट एंड करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ईजी, कोई दिक्कत यहाँ पे। आई डोंट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम कि हम लोग पहले प्रीवियस को क्यों अपडेट कर रहे हैं एंड देन वी आर अपडेटिंग दिस करंट। सो यूज योर ब्रेन एंड देन यू विल इजी फाइंड आउट द आंसर। इसको पेपर पेन पे लिख लेना, प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कोड, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई बट आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट कि व्हाट आर वी डूइंग। लेट्स समराइज द वीडियो। समरीज की है डबल एम कि अपने को अगर डिलीट करना है तो इट कैन एग्जिस्ट एट हेड पे एग्जिस्ट कर सकता है और ये हेड पे नहीं हो सकता है। अगर हेड पे होगा तो यू हैव सीन द केस, इफ नॉट एट द हेड यू हैव सीन द केस, एंड वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम। अगर वो एलिमेंट होगा तो डिलीट हो जाएगा, अगर वो नहीं होगा तो यू डोंट नीड टू केयर। अगर वो है ही नहीं उस पूरी लिंक लिस्ट में तो अपने को क्या प्रॉब्लम है, जिसको सर्च कर रहे थे है ही नहीं, उसको डिलीट ही नहीं किया, बात खत्म, ठीक है। सो दिस वाज इट, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन चलो गुड बाय, बाय बाय, और लाइक सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, सॉरी फॉर दैट, बट आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच।